डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार MAIMS, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मणिपुर, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल कुमार सिंह, श्री एसपी कैटवाल कार्यकारी अध्यक्ष, प्रोफेसर नीरज शर्मा निदेशक MAIMS, प्रोफेसर एसपी गर्ग महानिदेशक MAIMS, प्रोफेसर रवि गुप्ता डायरेक्टर MAIMS और प्रोफेसर SS देसवाल डीन एकेडमिक और संपूर्ण MAIMS परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पिछले 21 वर्षों से समाज कल्याणार्थ शिक्षा जगत के विभिन्न कार्यों में संलग्न है तथा राष्ट्रहित विचारों को सदैव मंच प्रदान करने में अग्रणी है। राष्ट्र के हित ही जिसके लिए सर्वोपरि है, राष्ट्रहित में सदैव चैतन्य रहने वाला है, राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना ही जिसका हेतु है। ऐसे महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रारंभ हमने ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से किया। त्रेता युग की चुनौतियों से पार पाने की महती आवश्यकता के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और द्वापर में मध्य से लेकर 200 वर्षों की अवधि तक ब्रिटिश राजनीतिक आर्थिक सामाजिक समस्त प्रकार से प्रताड़ित किया गया, लेकिन अगस्त ये शहीद सपूतों को श्रद्धांजलि बढ़ावा देंगे। जिनके दिशा निर्देशों में काम करते हुए मैंने व्यक्तिगत तौर पर और उनके एक ट्रस्ट है VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर आर्किटेक्ट और GTSI बहुत से प्रोजेक्ट में करती डॉक्टर नीरज शर्मा एक पूर्ण निदेशक और मैं अनुरोध करूंगी हमारे डायरेक्टर ये प्रोफेसर today. He is also well known as the governor, a very well known, very compassionate word that has been said about him at the state of Arunachal Pradesh, soldier, general, and future governor. And he is also a recipient of 6th of the year 2007 award
and Punjabi Award for his invaluable contribution. Thus, you are a good soldier and you have a personality which holds the saying right, around. I salute you, sir. Our guest of honor, Director TCS Private Limited, CFFCC Doctors Private Limited. He has PhD working as a senior teaching in defense management and certificate MBA in management from IIM Ahmedabad, most prestigious organization. I sincerely applaud and a warm welcome, sir. I welcome our source of motivation, founder and chief advisor MAIMS and Chancellor Rajasthan University, Himachal Pradesh, Dr. Nandkishore, a well-known leader, orator with degrees in chemistry and law from the University of Delhi and an honorary dean by Gurukul Vishwavidyalaya, 3 times MLA Delhi Vidhan Sabha. I welcome you, sir. I also welcome our inspiration, Sri Vinit Kumar Gupta ji, Chairman MAIMS, and Executive Chairman Sri L. Agarwal ji, a retired IAS officer. I also welcome our Senior Vice Chairman Sri Manoj Singhal ji, Vice Chairman Sri Jagdish Mishra ji, Vice Chairman Sri Sundarlal Goyal ji, General Secretary Sri T.R. Garg ji, Joint General Secretary Sri Mohan Garg ji, Sri O.P. Goyal ji, Chief Executive and retired IAS, Managing Director, Professor M.A. Goyal, our Vice Chairman, Academic Secretary, Sri Anand Gupta ji, Sri Rajneet ji. I acknowledge the Professor E.S.K. Garg, Director MAIMS, Dr. Ravi Gupta, Dr. S.S. Devkar, Dr. V.S.S. Devkar, the Chief Finance Officer, the Chief Finance Officer, staff, students of MAIMS and MAIMS. I would also like to acknowledge my technical team working under Dr. Namita Gupta, Mr. Alok, Mr. Anup, Mr. Anupan, working with the success, also online classes that are going to start shortly from the 20th of August, and the registration team which is working under Dr. V.L. Mathur. Here I would like to take the opportunity to briefly introduce the MAIMS Society. This Parivar is growing year after year in the global guidance of Nandkishore. MAIMS educate a child from growth and also give them a and therefore the following prestigious institutions are run by Maharaja Institute of Technology, MBA Electricity Planning Science certified, MAIMS certified, Maharaja Bhakti National Science certified, Maharaja Global MAIMS also believes in charity and it has contributed rupees 21 lakh and rupees 31 lakh to Ram Mandir Nirman with a commitment to contribute rupees 1 crore in the coming years. Today we have all gathered here physically and on the online platform to celebrate the 74th Independence Day and to remember the real life heroes who gave their lives so that we can be safe in our homes. Independence Day 2020 comes amidst the ongoing coronavirus crisis and the India-China standoff. So much has happened in the past 5 months. However, there is always light after light, and the new outline given by Prime Minister the line of Parliament, a gift for us, Ram Mandir, which was kind of a gift for purpose, and that is also a gift for the nation, a strong defense system
modern arms and ammunition. Lot of money from our nation, a gift of nation, 20 lakhs of rupees, and startups. New ventures in companies have been launched and are going to be launched in the coming months. And of course, a slogan that has been given by the national country, vocal for local. So these are the things that after this Independence Day, after the coronavirus has come to an end, we all have we all have to cherish and we have to work towards so that we can make a strong India. I would not like to stand between you and the great orators who have come here today, and you are all waiting to listen to them. In the end, I would just like to say, "ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ, जहाँ मैं याद रहूँ." Over to number. Vocal for local. India is a fabulous human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition, values, and morals. और अगर हम बात करें तो इसे भारत की शक्ति और अमूल्य संपत्ति है आज की युवा पीढ़ी. Prime Minister Modi this time urged our youth to take a pledge of freedom from the pandemic this Independence Day. He also said, "Stay resolved for resolve to learn and think something new, and with resolve to earnestly carry out the duty." युवाओं के प्रज्वलित मस्तिष्क एक विकासशील, सुसंस्कृत और सुरक्षित भारत की पहचान है. राष्ट्र की प्रगति उसके सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए और राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को जीवित रखने में भारत की युवा दृढ़ संकल्पित है और इन्हीं युवाओं की सोच को सकारात्मक आकार देने के लिए कटिबद्ध है निदेशिका महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्था प्रोफेसर डी.एम. शर्मा. आपकी कार्यकुशलता, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी क्षमता का प्रतीक है. निश्चय ही आपके प्रतिनिधित्व में आपके मार्गदर्शन से हम अपने छात्रों के कंधों पर राष्ट्र निर्माण का भार अवश्य ही रखेंगे. धन्यवाद एक बार फिर महोदया आपके नेतृत्व, आपके तत्पर मार्गदर्शन. Next we have amongst us an energetic, convivial, polite academician with us, Professor S.K. Garg, Director General MAIMS. Professor Garg joined MAIMS as DG in August 2019 after retirement from Deen Dayal Upadhyay College of Delhi University, where he served as principal for more than 20 years. He had an impeccable teaching career. He has also been a member of various committees of EU, UGC, and NHRD, including the National Knowledge Commission's working group, which designed the choice-based credit system in 2014. Sir has 16 research publications and is recipient of many prestigious awards, including the Ambassador for Peace Award of the International Federation for World Peace. I welcome you, sir. Over to Professor S.K. Garg. Thank you very much, Monica. Respected Chief Guest for the occasion, General J.J. Singh Ji, former Governor of State of Arunachal Pradesh, Guest of Honor, Colonel Kishan Kumar Singh, Guest of Honor, Shri Vineet Kumar Gupta, the Presiding Officer, Dr. Nankishore Garg, Founder and Chief Advisor of MAIMS and Chancellor of Maharaja Aghasen University, Shri S.K. Executive members of the Managing Committee, trustees, members of fraternity, my dear students, it's a great privilege for me to join this 74th Independence Day celebration today in the premises of Maharaja Aghasen Institute of Management Studies and Maharaja Aghasen Institute of Technology. We just had heralded the tricolor and are now celebrating the 74th Independence Day. Well, we got independence on 15th August 1947 when transfer of political power did take place. But did we get the real freedom?
Could we make ourselves free from the materialized expectation of our seat? Our education system remained flawed 70 years. You will recall that most of the European countries were devastated during the Second World War. Be it Japan, be it Germany, be it France, Russia, any country you name, they were in a total shambles. They also got independence. They all started together. But how is it that Japan achieved 100% literacy within 25 years and we have not been able to achieve it till now? So is it not that we could not get the freedom in designing our own education policy? I am glad that our government has now come up with a new national education policy, which has emphasized learning in the local language, learning mother tongue, which will help in developing creativity and will discourage thought learning. Perhaps it's a result of the flawed teaching learning process and the lack of creativity that we could not develop the skills of our students, our youth. Japan and Korea, they both have excelled in production of consumable electronic goods. France has specialized in production of air. We have recently purchased fighter aircraft from France. Why is it that they could not focus in these directions of ourselves? Although we have done a very good work in space technology, we have done good work in nuclear technology also. To use of solar power. But we have been lacking in production of defense equipment. A large part of our funds are spent on procurement of equipment for our. This has hampered to some extent our economic development as well. Although our GDP is fifth in the world, but if we talk of per capita GDP, it's dismal because we have a large population. So whatever GDP we have, that is divided into by a large number, and therefore the per capita GDP is very low. I think we need to have economic freedom. We need to have freedom in our education policies, for which the government has taken initiatives now. And the last thing I would like to say to the positive, that we needed a respectable position in the international scenario. Though we became politically independent, but we did not have that respect that the country deserved. It's only during the last 5 or 6 years that India is being looked upon as a respectable nation by the world community. And thanks to our Honorable Prime Minister Narendra Modi, who has taken various steps which has enhanced the prestige of the country at the international forums. And anybody who is strong to take decisions which are good for one's own country, is only respected by the world community. A weak leader, somebody who is scared of taking strong decisions, is never respected by anybody. That's a message that we have received from our government in the recent past. We do remember the people who have sacrificed their lives to see India independent. I am sure those souls will
will be happy to see us prospering now, not on in terms of political independence, but in terms of education independence, economic independence, and having expected position on the world scenario. With these words, I would again welcome all the guests and welcome you all in this celebration of today's Independence Day function. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much for sharing the overview of the economic development of the country. We need to have certain economic freedom. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts, and memories in our souls. Sentiment of patriotism fosters solidarity and mutuality in a society, reflects a healthy love for what is gratitude for what one has been given, and reverence for the sources of one's being. Patriotism is an intricate latticework of ideas. Thank you once again, sir, for sharing your views with us. A glorified, efficient, disciplined, diligent administrator, PhD Agarwal, who is currently executive chairman May. PhD Agarwal is a retired IAS officer. During his career spanning over 35 years in IAS, Shri Agarwal has served with distinction in almost all positions in government of Delhi, its associated bodies, Government of India, and also headed remote union territories outside Delhi. After retirement from the IAS and government office in 2005, Shri Agarwal had exposure at senior-most managerial level in leading companies in the corporate sector. Thereafter, he has been associated with various educational institutions with the objective of improving the academic standards and making education more purposeful. I welcome you, sir. Over to Shri Agarwal. Shri S.P. Agarwal, sir, could not attend this event due to some unavoidable circumstances. He is a strong motivator and a retired IAS officer. However, he started his career as a teacher. He has given a short message, so I would just like to read out his message to all of you on this occasion. I offer all of you my greetings on the 74th Independence Day. This is a happy and emotional day for all children of Mother India, whether living at home or abroad. On this day, we remember the countless freedom fighters who struggled and made heroic sacrifices to win freedom. We are a country of young people, and the energy of youth can be channelized in so many directions to achieve excellence. We Indians are a people who dare to explore the moon, and surely we will fight the present COVID situation and emerge victorious. The future will be bright and free for the focused India. Once again, a happy Independence Day to all of you. Thank you. Thank you. Over to Navrata. Future with the dawn towards. Well, that is the message of S.P. Agarwal, Executive Chairman. S.P. Agarwal, Executive Chairman, has been successful violence for the fund. Thank you, sir, for your encouraging message and for हमारे साथ मौजूद है सभी केंद्र सरकार में जो कि जोड़ों में ये बात है स्वागत आपका माननीय रविंद्र जी सभी केंद्र शर्मा जी जो हमसे जुड़े हैं ये बात नंबर जरूर का नंबर
I request the two technical team to find out if we are able to connect with us or if we are facing some issues with the connection. जी पारुल मैम अभी योगेंद्र शर्मा जी का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पारुल मैम आप अगला ले लीजिए इस कड़ी में अगली श्रृंखला। बिल्कुल हमारे मौजूद है शर्मा we have amongst us a dynamic entrepreneur and an accomplished scientist from Education Director, Photometric Private Limited, and Unique Business with Dr. Science. Krishna Kumar Singh began his army executive remember to benefit his years of in defense management with specialization in defense procurement, establishment of new units, local system training, civil military language, and private planning. The postgraduate in defense management and strategic studies from Madras University. He attended prestigious defense service staff college training. He served actively in various capacities of instructor, commander, and director project manager on his headquarters in Navy. One of his most credible assignments include raising his new operational unit for Indian Army as commander, valued over 420 million dollars. With a vast experience of closely working with organizations like DRDO, DPSPC, DGQA, is indeed a sought-after name in high-caliber simulation, operation electronics, and navigation controls. Post-retirement, he founded a consultant firm, P2DL Private Limited, and is currently the director of TEF and SEC Doctors Private Limited. He has been awarded Chief of Army Staff Commendation Card. Colonel Krishna Kumar Singh is mentor for startups in defense manufacturing and making India project work the most. भारत की सुरक्षा, निर्माण और तकनीक की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। इस वे में आपका योगदान अतुलनीय है। आपको बताइए, हम अभिभूत हैं कि आज हमें आप सही से कर्मठ प्रबंधन के अनुभवों से रूबरू होने का मौका मिला है। स्वागत अभिनंदन कर्नल कृष्ण कुमार सिंह। We are indeed honored and privileged to have you amongst us. You are patiently hearing us, so over to you now. Colonel Krishna Kumar Singh, over to you now. Thank you, Namita ma'am. Good morning to all. It is my proud privilege and an honor to be amongst the all dignitaries here and celebrating the Independence Day at an occasion where the country needs cohesiveness and a real attention from all the leaders. I sincerely thank the foundation and the Maharaja Hussain Technical Education Society, Dr. Nandapur Shah, Rajji, the founder and the chancellor, John J. Singh, the chief guest, Mr. Vineet Kumar Gupta and Dr. S.P. Brewal, all executive member body, the trustees and students, and especially the team which has made this event possible. It is a real occasion for us to look back
and see what have we achieved in the last 70 years of our independence, and really see the location and the aspects where our leadership is taking us in this era. Before I start my talk, I would like to have the three aspects of the leadership. Can I put a screen saver on? Okay, I would try to put a screen on top. If you can see that, it mentions about the checkpoint motto. For every officer who has come in, सम्मान और कल्याण हमेशा हर बार महत्वपूर्ण हो। फिर है सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुरक्षा, और अंत में आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार अंतिम मांगे। With these words are the epitome of our guidance, and we follow this religiously. These are the three principles which are the guiding beacon for us, has been the true aspect of soldierly treatment which brings the leadership qualities amongst us. So when we see adverse situation, how the country has trained people to become leaders, and I'm sure the Aggressive Technical Education Society is also looking for a similar kind of perspective from our future leaders, which are getting upbringing from your various institutes. To me, in my understanding, an adverse situation is where there is a chaos, where there is a loss of control, and also there is a loss of directions, and there is action required. All these four things are supposedly to be handled by people who are responsible, accountable, and feel strongly about it to either take it under control or change it for the betterment of everybody. Many people say, what are the leadership traits? उन सिद्धांतों को, उन विशेषताओं को जिनमें हम एक नेता को ढूंढते हैं, वो हमारे लिए जाननी जरूरी है। कुछ एक ऐसे ट्रेट हैं जिनको कि हम आसानी से समझ सकते हैं और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बढ़ाए भी जाते हैं। लेकिन सर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन करें। कर्नल कुशल कुमार जी से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन करें। धन्यवाद सर। So वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नेतृत्व की वो चीजें जो एक किसी लीडर में होनी चाहिए, हमें किताबों में काफी मिल जाती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का मौका कम होता है। यही वो रीजन है कि लीडरशिप के लिए अपने आप को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एडवर्सिटी ये एडवर्स सिचुएशन के अंदर केवल वो ही लोग सक्सेस होते हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सरसाइज करके देखा होता है, अपने आप को उस लिमिट तक ले जाके देखा होता है कि वो उस कार्य को कर सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेट्स हैं वो हैं सेल्फ बिलीफ, मॉरल करेज, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू लीड, लर्निंग, expression, bold decision making. Now these are the few areas which makes a leader. And definitely an organization like Defense Forces gives us enough opportunity and situations that we have to exercise that from a very, very young age. Now I would like to highlight these traits into adverse situation, which is the area of topic for today given to me, leadership in adverse situation. I will highlight these traits in various conditions by quoting example of 3 incidents which have happened in the past from the day we got independence, and we can take some lessons out of it and find
where we can improve our leadership quality and take it to the level of building a nation and see how we can contribute. And I'm sure these incidents give us an opportunity that why in civil society, in our day-to-day engagement, how can we take this as a necessity? So let's take three incidents which I'm going to highlight, which gives us various group of characteristics in a leader which change the event, situation, and in some cases the course of history for the country. My first example is the Battle of Dograil by a very elite unit called Three Jars. The incident which I would like to highlight is the 1965 war, where the orders were given to this unit to capture a village called Dograil, which is on Kichukiri Canal, south of Lahore. Lieutenant Colonel Deshmant Hay, who was the commanding officer of this unit, a Mahavir Chakra awarded for this is an Irish-born person, but a thoroughbred Indian, and he settled in Gurdwara. This unit was tasked by him on two major beliefs, and he said that nobody will return back from this attack. Whether dead or alive, we will meet in Dograil. It's a very strong statement. It was his belief, but it was his decision. Finally, this unit captured Kichukiri Canal and captured the Dograil, which has led to the change of the result of the battle we have fought in 1965. And one single decision by this gentleman has created a history for the country. His capability shows self-belief, leading by example, courage. These are the few qualities which we have seen in this operation, and we found out that yes, a person, a leader who has self-belief, who can lead by example, and who has the courage of conviction to stand in front of his subordinates and followers to mean what he says is really the leader, and there we see how the history has got changed for the country by this action. Similarly, a second incident in Battle of Zurila in 1948, when we had Pakistanis entering into from Sakardo area, going in towards the Dar Leh area, which was being captured. Then General Kumeya decided to control the situation, and something unusual happened. We decided to take our tanks into the area where nobody in the world has ever taken. This was a forethought, an ability to see the situation and take a bold decision. These are the leadership quality which has brought Lieutenant Colonel Rajinder Singh Sparrow, who was commanding officer of 7th Cavalry, to take this tank under secrecy from the area of Nagrota to Jojila in a month's time, clearing all the bridges, going into through the highways, nalas, rivers, and reaching the place where enemy has no option but to run away. This bold decision making, reading of situation was again another quality of our leaders, which has led to a situation in we got the day what we call it today as ours. So these are the small decisions taken in terms of war and critical situation, but has proven that how our country is saved by two leaders who has taken a very strong and bold decision. This incident gives us situational awareness, bold decision making, and initiative as the characteristics of a leader, and how does we allow this to happen on the ground. My third example will be a recent action in Tiger Hill during Kargil War on 3rd of July 1999, when we see 2 Naga, 8 Sikh, and 18 grenadiers, 3 exceptionally well units. They carried out an attack which was considered almost impossible. They reached to the heights which has never been scaled by the altitude soldiers earlier, and without any winter gear, they attacked and thrown out and evicted the enemy from those posts in a sure shot deadliest battle. Major Ravinder Singh from 8th Sikh and Grenadier Yogendra Singh Yadav, who was awarded Paramveer Chakra for this action, was one of the few leaders who has taken this bold action, very determined approach, and a strong character in them to take this idea.
If anyone of you go ever to Kargil and happen to see the Tiger Hill, you will realize how difficult it is to even reach and scale up these heights. And these boys have carried out an action which was really impossible and never heard of earlier. So these three incidents give us the characteristic and the bulk of qualities in a leader which meant to be make adverse situations become favorable and take the advantage of it to the betterment of our society, the betterment of our country, the betterment of our organization. Having heard this, So you're requested to unmute yourself. okay, ma'am, I was muted by somebody. Yes, I will repeat my words. Having seen these three events, now I feel that these group of qualities in our leaders makes them different from the rest. Since they have exercised themselves, they have able to stretch their capability, they have challenged themselves to make things happen. And this is another quality of a leader to challenge himself, to improve himself in every situation. Naam, namak or nishan. These are the values for which we live and we die for. Every soldier works on these parameters because nation first is what we have been taught. We have young lads with the age of 18 to 22 which go on operation with the belief that their leaders will save them, bring them back alive. I would like to quote again from Major General MacArthur, who always said, never give an order which you cannot obey. And he could be right better than this, that any leader, unless he is ready to do himself, will not be able to carry out any action till the time he is convinced that he can do himself. With these few words, I can narrate hundreds of areas where the country has shown the character since independence. The leaders who have shown the caliber to do it, all they require is the support and the belief of the people who are following them. We are in the current situation where the country is going through a crisis. There are a lot of challenges. We need leaders in every phase of life, whether it's in education system, manufacturing, business houses, financing, labor issues. Everything is going to be now increasing, and these are the leaders which are going to take us to the next level. The country is open and in the race to show the dominance in the world. People are looking towards us. We have the time to showcase that what are we capable of. The country has human resources, we have natural resources, we have talent, we have all the ingredients to make things happen. Maybe last 70 years may not have given us that much of speed of progress, but definitely next 70 years is up to us how we would like to see all that. And with this, I would only see that the leaders for tomorrow are the ones who lead by example. Leaders are the ones who will have less of ego and more of concern. The leaders who would like to learn few new things in life and follow it also. And those who keep nation first. With these thoughts, I think I have been able to put across how important for us is to have the leaders which are not only the followers, they are the learners and the future of this society. With this, I can end my talk and thank you very much for patient hearing. Jai Hind and happy Independence Day to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you indeed for taking out valuable time and sharing your experiences with us. नाम नमक और निशान इसी के लिए लेना, इसी के लिए हम सर्वस्व बलिदान करते हैं। अपने देश की सुरक्षा सम्मान सर्वोपरि हो, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि रहे, देश हित सर्वोपरि रहे। अपने सामने शब्दों से अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for demonstrating the traits of an efficient leader by giving us active examples from veterans and veterans, whether this or another.
already much needed in the new India in this particular moment. Thank you, sir. Thank you once again for sharing your thoughts and inputs with all of us. I'm sure the students who are tuned in and who listen to you will definitely benefit a lot from your examples. नए सुबह का स्वागत करने, नूतन आस जगाने दो, खुद का परिचय संघर्षों से यह एहसास कराने दो, जो न सोचा हो जाता है, नहीं हारते वीर कभी, सच्ची कोशिश, प्रतिफल, अच्छी बातें खास बताने दो। और जी हाँ, हम कुछ खास लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं माननीय योगेंद्र शर्मा जी। सर, योगेंद्र शर्मा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, जो लाउड है आपकी आवाज अक्षरशः हम तक पहुंच रही है। पुनः सभी को प्रणाम करता हूं, गरिमाशाली मंच को प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की इस एक दिन पूर्व जो आयोजित बैठक है, मुझे सूचित किया गया, मैं बहुत बड़े लोगों के दर्शन भी कर रहा हूं। जनरल जे सिंह सर यहाँ पर विराजमान हैं। अभी मैं कृष्ण कुमार सर को सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और परमवीर चक्र की भी बात की गई, हमारे देश के वीरों की बात की गई। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब श्रेष्ठ के कल्याण ही विश्वान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्मनिरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पश्चात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्यत भाव से नत शीश होकर पुनः आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। 5 अगस्त को एक फैसला हुआ है, पिछली 5 अगस्त को भी एक फैसला हुआ। कश्मीर के हालात में क्या बदलाव आया, ये तो मैं आपसे नहीं कहूंगा। कितना देश ने उसको कैसे लगाया, ये भी मैं आपसे नहीं कहूंगा। लेकिन हमने जो 5 अगस्त को किया, मैं 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कलुष कृत्य के विश्व वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। पक्ष पक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। एक और घटना इस 5 अगस्त को घटित हुई, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। तेज आदित्य का फिर कड़ा हो गया, आज इतिहास खुद से बड़ा हो गया। जो अवध में हुआ राम का आगमन, व्योम पल के बिछाकर खड़ा हो गया। व्योम पल के बिछाकर खड़ा हो गया। राम की जय धरा धाम उच्चारती, गर्व से भर गई आज मां भारती। लो धरा पर सितारे उतारो जरा, थालियों में सजाकर करे आरती। विश्व जय तक कभी रथ रुकेगा नहीं, आत्मन भारती का दुखेगा नहीं। शैलखंडो सुनो संत के नाद को, ये हिमालय कभी भी झुकेगा नहीं। देश मां का बड़े मान वैभव परम, देश रक्षा हमारा धर्म है वरम। गूंजता ही रहेगा गगन में सदा, गीत वंदे वतन मातरम मातरम, गीत वंदे वतन मातरम मातरम। मैं देश के परमवीर चक्र 21 परमवीर चक्र विजेता हूँ। 7 को जिंदा और 14 को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तमाम परमवीर चक्र पर मैं कविताएं लिखता हूँ, लेकिन मैं केवल 4 पंक्तियां, क्योंकि कर्नल साहब ने नाम बोला था योगेंद्र सिंह यादव, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जहां कहीं है, मैं उनको ये पंक्तियां समर्पित करता हूँ आप सबके माध्यम से। कारगिल में पार्थ के गांडीव की टंकार है,
आज भी बरेली में वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तब निवेदन करता हूं, कारगिल में पार्थ के गांडीव की टंकार है, देश माता के लिए अर्पित लहू की धार है। गोलियां 17 लगी, गोलियां 17 लगी, पर मौत थर्राती रही। गोलियां 17 लगी, पर मौत थर्राती रही। सूरमा योगेंद्र यादव रुद्र का अवतार है। सूरमा योगेंद्र यादव रुद्र का अवतार है। सूरमा योगेंद्र यादव रुद्र का अवतार है। मैं भारती माँ का वंदन करके, चूंकि मेरे पास समय की सीमा है, मेरा मन तो था कि परमवीर योगेंद्र यादव की कविता आपको पूरी सुनाऊं या मनोज पांडे की कविता आपको पूरी सुनाऊं, लेकिन चूंकि मर्यादा है समय की, मेरे पास 3-4 मिनट का समय और है। मैं भारती माँ का वंदन करके अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। सुनिएगा क्या विशेषता मेरी भारत माता की। आदरणीय जगदीश मित्तल जी की वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आप सबके दर्शन कर रहा हूँ, आपसे खातिब हूँ और अपनी पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ। सुनिएगा। जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, ब्रह्मणीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे। महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंधु कैलाश कभी इस भारत माता वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। शत विक्षत में काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा छत लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू पुस्तक भारत माँ की छाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल रात प्रभाती गाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुक्र ज्योत्सना माँ की चुनरी सदा सिमटती आई है, और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज कराई है। शस्य श्यामला अचला को, शस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। शस्य श्यामला इस धरती को पर कोई काट नहीं सकता। मन भटका बेटों का माँ को कोई बांट नहीं सकता। मन भटका बेटों का माँ को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिट्टी में ही हमारी ये समझाने निकला हूँ, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूँ। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा, क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त बहा। आजादी तो मिली हमें, पर लाशों के अंगारों पर भारत माता झुलस गई पर अडिग रही अंगारों पर। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था, दोनों हाथ कटे माता के छलनी छलनी सीना था। जो भारत के बंटवारे पर बड़े लोगों की महफिल है, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समझिएगा। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार नहीं। जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत माँ का शेर दिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। भारत के उन आकाओं की हरकत बहुत दिनों में थी, पर भारत की किस्मत में अनहोनी भी होनी थी। याद करो, रेलों में पैसे रखती लाशें आई थी, माँ बहनों को लूट लूट कर पैसे आग लगाई थी। आम आदमी मरता तो है मजहब के रंगों में, इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। इस उत्तर में भारत माँ के अंग अंग को काट दिया, और वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। मैं समझता हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को। आदरणीय कृष्ण कुमार सिंह सर, बहुत जोश भर दिया आपने अपनी वाणी से। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। युवा शक्ति के अंतस्पल का भान कराने निकला हूँ, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूँ। और अंतिम पंक्तियां फिर एक बार मेरे को
गिरफ्तारी की। हमने कितना संघर्ष किया जो 5 अगस्त का दिन देखने को मिला है। 493 वर्ष का संघर्ष कुछ ही पंक्तियों में, केवल 6 पंक्तियों में, 8 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। अंगारों के तप पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, सौ घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं। और जेजे सिंह सर पंक्ति देता हूं, बारूदी चिंगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं। और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की, फिर शौर्य से लिख देंगे हम गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में प्राण भरो। ये आपकी वाणी से इस नवयुवा पीढ़ी में जो प्राण भरने का काम आप कर रहे हैं सर, मैं बहुत सैल्यूट करता हूं सर आपको। उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में प्राण भरो। अवध धरा पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण करो। अवध धरा पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण करो। अवध धरा पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण करो। जय हिंद, जय भारत। तुम जागो तो संकल्प हो, जब संकल्प कर सकते हो, तुम जागो तो संकल्प हो, जब संकल्प कर सकते हो। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने अपनी कविता को प्रस्तुत किया। काल में सुखा बच तुम्हारा प्यार बह रही है आज भी तुमने बच किया। सेवक सैन करते हो सही करो, कौन एक सरकार में सुखाव को खर्च होगी करते जब जय नाम नहीं बनता। अंगारों पर चला तुम्हें भी सारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए अपनी कविता को हमसे साझा अपनी modern illustrious personality, his excellency, General Singh. The Lieutenant General Jagendra Jaswant Singh grew up in army environment. He was commissioned into 9th Maratha Light Infantry on 2nd August 1964. Since then, there has been no looking back to his great son of India. He became second chief of army staff and commanded the second largest army of the world from January 2005 to 13 September 2006. During his tenure, General J.J. Singh refined operational planning by the navigating role of revolution and policy of island peace in clubs. He commanded in the elite of island during Operation Pura Vijay and Parakram. Given the face of Indian Army in battle warfare, your courage and unassailable spirit has been nationally recognized for awarded with Param Vishishta Seva Medals, Param Vishishta Seva Medals, and Vishishta Seva Medals. In January 2008, General J.J. Singh was sworn in as Governor of the state of Arunachal Pradesh. As a governor, he took keen interest in monitoring all the development activities and security offices. No wonder you were named as People's Governor, as you were instrumental in the sanctions of special development packages State Council proposed to Arunachal Pradesh. You have been awarded with a Tip of the Year Award and Lifetime Achievement. देश की सुरक्षा तथा उत्थान के लिए आपकी प्रतिबद्धता में राष्ट्र के सामने शौर्य पराक्रम और संवेदना के नए आयाम रखते हैं, नई मिसाल। अरबी और फ्रेंच भाषा के जानकार वाकई कार्यक्रमों की बेहतरीन मिसाल बनाते हैं। आप गंभीर हमारी दुनिया में इन्होंने देश के सामने नेतृत्व की मिसाल बनाई है। हिंदुस्तान के वासियों को दिल्ली तरफ से बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। हमारे सरहदी कोर्ट इंडिपेंडेंस डे के लिए इससे पहले जिन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बहुत अच्छे शब्द यूज किए और कविता के जरिए या अपने एग्जाम्पल देंगे। कर्नल के सिंह ने भी बहुत अच्छे तरह से ये परिचय दिया कि हिंदुस्तान क्या है। जो हमारी बात है वो हिंदुस्तान का एक प्रतीक है। हिंदुस्तान के ही लोग हमारी फौज में जुड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग दे के हम उनको बनाते हैं जो कुछ भी है। तो इन शब्दों के साथ में अपना
विचार आपके साथ शेयर करूंगा और आई वुड लाइक टू से that it is a great privilege to address a virtual gathering. आजकल का जमाना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और कहीं भी बैठे हो आप इस तरह से कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, तो मुझे जो ऑर्गेनाइजर है उनको धन्यवाद करना होगा कि आपने ये पॉसिबल कर दिया कि हम शरीक हुए इस बहुत अच्छे प्रोग्राम में। अब इसमें मैं आप सबको नमन करना चाहता हूँ। हमारे महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी सब प्रोग्राम किया है, धन्यवाद। और साथ में हमारे बड़े डिग्निटरीज हैं जो एजुकेशन के फील्ड में हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो नाम भी है वो भी देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको भी मैं बहुत आज धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो। और हमारे डिफेंस फोर्सेस के जो लोग शामिल हुए हैं उनको, और मीडिया जो कि एक वाइब्रेंट मीडिया है, एक आजाद देश का नमूनेदार मीडिया है जो हमें सब कुछ बताता है हमारे देश में क्या हो रहा है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं देश के सबसे बेस्ट और ब्राइटेस्ट यूथ नौजवान हैं और युवतियां हैं, उन सब के साथ मैं वार्तालाप में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं बेस्ट representatives of the democratic dividend of India। सब कहते हैं हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक डिविडेंड है जो हमारी है, तो मैं समझता हूँ कि हम जरूर आगे बढ़ेंगे और दुनिया में एक महान शक्ति के रूप में इसी सदी में उभर के आएंगे। आप लोग यूथ are going to have this democratic dividend is going to have in propelling our nation's growth। जो लीडरशिप है वो सिर्फ बड़े लोगों का आप नहीं है, उसमें आप सब नौजवान भी हैं, आप सब के ऊपर हमारा बहुत ही भरोसा है, ट्रस्ट है कि आप हमारे देश को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे और हमें एक वर्ल्ड पावर जो बनना है वो हमारी ये सदी कही जाती है कि हिंदुस्तान की सदी है, इंडिया की सदी है, तो इसको मुमकिन करने के लिए आप लोग योगदान पूरा देंगे। लीडरशिप के बारे में जो मुझे कहा गया कि आप अपने विचार दीजिए, उसके ऊपर तो हजारों किताबें लिखी गई हैं और उसके साथ साथ आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं सिर्फ सोचता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस में जो चीजें महत्वपूर्ण थी उनके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं सीमित तक ही रहूंगा जहां तक कि जो चीजें मैंने इस्तेमाल में लाई ताकि मैं कामयाब। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक उद्देश्य होना चाहिए हम सब पर जिंदगी में, चाहे बड़े हैं या हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर हैं या आप समझ पेरेंट्स हैं, एक उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हमने ये काम करना है। और इसमें हो सकता है एक शॉर्ट टर्म एम है, एक मिड टर्म एम है, लॉन्ग टर्म एम है, वो आप कर सकते हो, लेकिन एम या उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो जैसे वो नाविक है वो किसी में बैठा है लेकिन उसे पता नहीं किस बोर्ड पे जाना है, किस जगह पे जाना है, तो उसको कोई हवा कामयाब नहीं करेगी क्योंकि उसको पता ही नहीं उन्हें जाना था। तो इसलिए एम अपने सामने रखिए और उसको हासिल करने के लिए जी जान लगा के काम करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप के जो उसूल हैं ये चाहे आप घर में लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्री में लीजिए, एजुकेशन में लीजिए या पॉलिटिक्स में लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस में लीजिए, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सब बराबर है, उसमें कोई शक नहीं, और वो होने चाहिए अगर आप अच्छा लीडर अपने आप को मानते हो। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी अपनी जो दिए हुए टास्क है उसकी तरफ देखना चाहिए
और हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम अच्छे लीडर बन सकें। तो इसमें कहते हैं कि लीडर पैदा होते हैं, अच्छे लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। इसमें मेरे हिसाब से ना पैदा होते हैं ना बनाए जाते हैं, इसका मिक्सचर है, ना व्हाइट या ब्लैक नहीं होगा, शेड्स ऑफ ग्रे है। दैट मींस एक तो आपको किसी जगह पे चुन के आपकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आप लीडरशिप से बाहर बन जाए। दूसरा है कुछ भगवान की दी हुई देन होती है, जैसे आपका बुद्धि है, आईक्यू है, वो अगर आपका हाई है तो आप जल्दी समझेंगे, आप जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यूल है, कच्चर है, उसको जितनी मर्जी मेहनत करवा लो उससे, लेकिन वो वही रहेगा। तो दैट मींस उसकी ऊपर की जो बुद्धि है उसमें कमी है। तो और में भी ऐसा ही है, हमें एक तो चीज है जो भगवान की देन होती है, बुद्धि जो है वो भगवान ने दी है। और मैं आमतौर पे लोगों से यही कहता हूँ कि आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अलग चीज करो, डू समथिंग अनप्रेडिक्टेबल, डू समथिंग इनोवेटिव। अपने बुद्धि को यूज करते हुए कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे कि आप दुश्मन को सरप्राइज कर सकते हो, और तब आपको कामयाबी मिलेगी। जो ग्रेट जॉब करेगा उसको कामयाबी एवरेज स्टैंडर्ड की मिलेगी, वो अच्छा लीडर नहीं है। और इसलिए ये मैं पहली चीज कहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, और हंसते हुए अपने जवानों से भी कहता हूँ, भाई ये बुद्धि भगवान ने दी है, इस जन्म के लिए दी है, अभी इसको स्टोर मत करिए, इसको यूज करिए। तो उससे भी दीवारों को प्रेरणा मिलती है टू बी इनोवेटिव और टू थिंक ओरिजिनल। अब आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आप सब जानते हैं, सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया को कोरोना पैंडेमिक का एक बड़ा चुनौती है, बड़ी चुनौती है, उसको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो हमें we have to do something to overcome this। आज के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है कोविड को अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है, क्योंकि इतनी संख्या के हमारे देश में अगर इस तरह से हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है और बाकी चीजें जो है वो भी हैं, वो देखनी पड़ेगी हमको। मैं समझता हूँ ये हमारे देश ने अच्छी तरह से हैंडल किया है। अब ऐसे चुनौतियों के वक्त ही अच्छे लीडर सामने आते हैं, और आपके सामने दिख रहा है आपको कि अच्छे लीडर हमने किस तरह से, हमारे लीडर्स ने इस चुनौती का सामना किया है अभी तक और आगे भी करेंगे। दूसरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें भी हमें जरूरी है कि हमें अच्छे लीडर्स सामने आने चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी बॉर्डर तक गए, हमारे जवानों से मिले, और इससे हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा, और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा कदम लिया उन्होंने। अभी आप अच्छे लीडर की बात करते हैं, वो जो है ऐसे होने चाहिए जो अपने नॉलेज जिनकी अच्छी होती है, अपने जवानों से अच्छी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल लीडर्स भी वही है जो देश के अंदर समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, और इसलिए वो लीडर अच्छे होते हैं जो कि उन समस्याओं को ठीक से हैंडल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने जो देश के सिटीजन्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही हैं, उनको अच्छी तरह से वो टैकल करने में और वो सेवा करने की भावना से नेता बने हैं, ना कि राज करने। और इसीलिए अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटर को भी उन्होंने पब्लिक सर्वेंट का नाम दिया था। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भूल जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक के लिए सर्विस करनी चाहिए। तो इसलिए वो भी, उनके लिए भी मेरा यही कहना है। बहुत सारा और कुछ मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी से मैं आपको कुछ और मेरे ओन एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मेरा एक मुद्दा हमेशा रहा है फाइट टू विन
अगर चुनौती मिलती है तो जीतना है। तो 1 मिनट मुझे माफ करना, मैं मेरा मोबाइल का बैटरी थोड़ा डाउन हुआ है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। सॉरी। तो फाइट टू विन ये जो है मुद्दा है, अगर आप चुनौती आपके सामने आती है, जैसे अभी एलएसी पे है, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाइना वालों को बोलेंगे कि आप जहां पे अप्रैल में थे वहां चले जाइए, नहीं तो हम आपको यहाँ ही रहने देंगे, और हम भी इधर ही अड़ जाएंगे। ये पहली बार हुआ है ऐसे, एक बार पहले भी हुआ जो कि हमने डोकलाम में किया था। ये 2 एग्जाम्पल है जहाँ पे हम अड़ गए और हमने चाइना को मैसेज दे दिया, एक साफ मैसेज दिया है, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप अग्रसर हो रहे हैं, अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं, फिर हम उसको कबूल नहीं करेंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। अब ये भी अच्छे लीडरशिप के साथ हम कर सके हैं, और मैं यही दाव देना चाहता हूँ हमारे लीडर्स को कि आपने हमको ये फ्रीडम दी है कि देश की रक्षा के लिए आपको पूरी आजादी है, आप कैसे भी एक्शन लेना चाहते हैं आप भी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। जी हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? या जी सर, मुझे आप सुनते हैं मुझे? जी सर। ओके सर, आज ये इलेक्ट्रॉनिक कार में यही हो रहा था, मैंने शुरू से बैटरी ऑन रखी थी, उसकी भी लाइट है, और इससे मुझे याद आता है कि तब मैं लीडर था, मैं अपने जवानों को पूछता था कि आप जो है अपनी मोबाइल फोन को शाम के वक्त क्या करते हैं, तो सब कहते हैं कि ठीक है हम उसको चार्ज के लिए लगा देते हैं। तो मैं उपस्थित ऑफिसर को बोला था कि क्या आपके जवानों की बैटरी चार्ज करनी चाहिए या नहीं। अगर आप उनको घुमा के बुलाते रहोगे पूरा दिन बाद, वो एक थका हुआ घोड़ा होगा, तो आपको जीत नहीं देगा। इसलिए उसका भी मानसिक और शारीरिक बेस्ट के लिए टाइम देना चाहिए, जिस तरह से आप अपनी मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल से मैं लीड करता था। लीड हमारे स्क्रिप्चर्स में महाभारत से लेकर और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए और आगे से लीड करना चाहिए। अब मुश्किल है, जब आपके पास एडवर्सिटी है, जब आपको हार दिख रही है, उस समय तो लीडर होता है। वो फील्ड मार्शल सिंह ने भी कहा कि भाई देखो, अच्छे लीडर वो होते हैं जो डिफीट में भी अपना दम दिखाते हैं और अपनी वो कहते हैं ना, अपनी हिम्मत नहीं हारते। तो युद्ध में देखा जाता है, और दुनिया में आज तक भी यही है, जो ताकतवर है उसको इज्जत मिलती है। और हमारे देश में हमें शिक्षित क्यों देखना पड़ा कि हम कमजोर थे, उसके बाद हमने दिखा दिया है कि हम आपके बराबर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपके नाम करने की काबिलियत है। और दूसरा मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये लीडरशिप अच्छी है, जो लीडरशिप है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। तो ये नहीं रहेगा कि सिर्फ आप ही करते रहोगे, हम करेंगे। ये भी संदेश चला गया है। हम शांतिपूर्वक एक बॉर्डर का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जैसे मैंने कहा, फाइट टू विन एंड विन बाय नॉकआउट। तो आप कुश्ती देखते हैं, चित करने में कितना मजा आता है, या बॉक्सिंग का मैच देखते तो नॉकआउट करने में कितना मजा आता है हमारी टीम को। तो वो चीज जीतना है तो फिर ये नहीं कि मार्जिन से जीतो, नॉकआउट करके जीतो। ये जो है कि आ गया है, एक मेरी कहावत है, फाइट टू विन एंड विन बाय नॉकआउट एज देयर आर नो रनर कम इन फॉर्म। लड़ाई में हम ये नहीं कह सकते देशवासियों की हम सिल्वर मेडल लेके आ गए, हम सेकंड आ गए, नहीं। तो हर बार इतना है, you have to win every time
तो आप देख लीजिए चाहे भारतीय हुआ, चाहे इससे पहले भारत की लड़ाई हुई या 1962 को छोड़ के बाकी सब लड़ाइयों में हम लोग बहुत शानदार तरीके से अपने आप को हमने तैयारी की। और हमारी फौज के जो है जो हमारा असली टास्क जो है वो है देश की रक्षा करना, देश की सरहद की रक्षा करना, देश के जो कोर वैल्यूज हैं वो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे के सिंह ने कहा चेकबुक कोड ऑफ वर्कर के बारे में कहा जो कि आईएमएफ में हाउस ऑप्शन को करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ उससे पहले हम सबको ये शपथ लेनी पड़ती है, वो शपथ जवान भी लेते हैं, अफसर भी लेते हैं कि हमने अपलोड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और हमारे कोर वैल्यूज हैं उनको बचाना है। तो देश के लिए फौज का बहुत अहम काम यही है कि देश की अखंडता जो है उसको मदद करना और सिक्योरिटी तक लाया जाता है वहां पे भी योगदान देना और देश की एक्सटर्नल थ्रेट को भी हैंडल करना। तो अभी मैं खत्म करने से पहले परमवीर चंद्र विक्रम बत्रा जी के अल्फाज कहूंगा। जब वो हमला करने गया कारगिल की लड़ाई में तो उसने जाते समय ये शब्द कहे कि या तो मैं चौकी का कब्जा करके तिरंगा वहां लहराऊंगा या मैं तिरंगा में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो ये चीज तो है हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसे नौजवान है, हमारे देश की फौज में इतनी हिम्मत है और हम देश की रक्षा करेंगे। और हर जो भी ओपिनियन पोल आया है उसमें फौज को नंबर 1 स्थान मिला है हर देश में और वो ही हम बच्चे अपनी जी जान लगा के काम करें। धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद परम सम्माननीय जनरल जे सिंह। नेतृत्व कैसा हो, आपने बहुत सात गर्भित शब्दों में इसकी व्याख्या की। ये लीडरशिप ही है जो देश की वंदना करना सिखाता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में ही देशवासियों का स्वाभिमान जागता है और वो देश की माटी का अभिनंदन करते हैं। वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश। सत्य की विजय सदा, असत्य की हार, न भय रहे तनिक सा, साहस हृदय के द्वार। मातृभूमि को किसी भी संकट से उबारने के लिए भारत संतति नए साहस, नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी होती है। भारत के सम्मुख आज जब एक बार फिर न उपनिवेशवाद एवं विस्तारवादी शक्तियां हमारी सीमाओं पर चुनौतियों का पहाड़ बनकर खड़ी है, उनकी कुदृष्टि हमारी पावन वसुंधरा और हमारे संसाधनों पर है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि तिरंगे के सम्मान को बचाने के लिए देश का हर एक नागरिक मनसा वाचा कर्मणा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं को सहर्ष प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करता। वो चाहे हमारे सेना में बहादुर नौजवान हो या फिर देश का सर्वोच्च राजनेता, किसी भी विषम परिस्थिति को अपने लिए अवसर के रूप में परिवर्तित कर लेने में पूर्णतः सक्षम है। जी 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 मैम, बहुत सही शब्दों में आपने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शुक्रिया हम सभी का, हम सभी की तरफ से शुक्रिया के साथ साथ हम आज के पलों को सतीश पर रखना चाहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू switch on your cameras and mics so that you can have selfie moments. Each person is requested to switch on your cameras as well as mics so that we can have a selfie on the cycle to get ready with that. So that was the issue.
It's a audit moment. Absolutely. Professor Nadina Sukanda Sultan, it was and young is therapy. तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी विश्व परिस्थिति को अवसर में परिवर्तित कर लेने में पूर्णतः सक्षम है भारत, और वो दुश्मन गलवान घाटी में हो या अदृश्यता का अवस्था कोविड-19 की हो, हम डटकर मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि ये भारतवर्ष की परंपरा रही है कि हम सत्य की जय के पक्षधर रहे। असत्य और अन्याय को पराजित करना ही हमारा परम धर्म है। विद्वत समुदाय जब पुनः पुनः मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण की बातों पर प्रकाश डालता है तो वो हमारे लिए सहज ही ग्राह्य हो जाता है। महाजनों गतः सपन्नः। प्रत्येक देश काल में महाजन अर्थात विशिष्ट महत्व विद्वत जन जिस मार्ग को सुनिश्चित करते हैं वो सभी के लिए अनुकरणीय हो जाता है। ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व जो राष्ट्र प्रेम को अपने हृदय में संजोए, वेट्स परिवार का जिनका वरदहस्त है, उनका नेतृत्व मिला है वेट्स को, जो पिछले 21 वर्षों से समाज में शिक्षा की अलग जगाए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख विकास के सोपानों पर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी बागडोर ऐसे सशक्त कर्मयोगी के हाथ में है जो शिक्षा की मशाल को जलाए रखने में अनवरत मनसा वाचा कर्मणा संलग्न है। विपरीत परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए, ये हुनर सीखा जा सकता है डॉक्टर नंद किशोर गर्ग के नेतृत्व में, क्योंकि उनका नेतृत्व सिर्फ मेट्स परिवार के लिए ही नहीं अपितु समाज कल्याण के बृहद आयामों को दिशा देने वाला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गर्ग के नेतृत्व, कृतित्व और व्यक्तित्व को हम सभी वंदन करते हैं और यहाँ मैं डॉक्टर गर्ग की पसंदीदा पंक्तियां दोहराना चाहूंगी जो खरी उतरती हैं उनके व्यक्तित्व पर। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का भाषा समर्पित, मान अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। मेरा निवेदन है वेट्स के आधार स्तंभ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से कि वे अपने आशीर्वचन हम सभी के लिए कहें। स्वागत है डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। नमस्कार। नमस्कार। सबको आवाज आ रही मेरी? सबको आवाज आ रही मेरी? जनरल जे सिंह जी आ रही है?
किया जी। आ गया जी, आवाज आ रही है सर। जनरल साहब जय हिंद। कर्नल के सिंह साहब, हमारे अध्यक्ष श्री विनीत कुमार जी लोहिया, कार्यकारी अध्यक्ष श्री एसपी अग्रवाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री टी.आर. गर्ग जी, सभी हमारे सहयोगीगण, सारे हमारे महाराजा अग्रसेन परिवार के साथी, प्रिय छात्रों, आज 14 अगस्त को मैं इसलिए ज्यादा याद रखता हूँ कि आज हमारे इस भारतवर्ष से टुकड़ा अलग करके, टुकड़े तो 500 करने की साजिश थी, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त उसका जन्मदिन है। हमारे यहाँ तो केवल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, हमारा तिरंगा लहराया था और हम आजाद हुए ऐसा माना जाता है। उस आजादी के कारण मेरा परिवार भी आज के उस पाकिस्तान के से उजड़ कर आना पड़ा था, इसलिए वो यादें ज्यादा रहती हैं। परंतु भारत में इन 73 साल में बहुत कुछ पाया है। अभी जिस प्रकार से युद्धों के वर्णन हुआ, मुझे भी 62 की लड़ाई भी याद है। थोड़ा वो छात्र जीवन में उससे भी जुड़ा था, नेहरू जी से मिलने का अवसर मिला। लगातार उसके बाद जीवन में राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली, परंतु सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाले यदि कोई रहे तो मेरे जीवन में जिनको मानता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह और स्वामी विवेकानंद। यह संत और सिपाही परंपरा के जनरल देवी सिंह साहब आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनके कारण से मैं समझता हूँ देश उस कालखंड में भी जीवित रह सका, जिसमें हम बेशक पॉलिटिकली गुलाम हुए होंगे, परंतु मन से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रताप से, महाराणा प्रताप के कारण, छत्रपति शिवाजी के कारण, और उसके बाद लगातार हमारे ऐसे वीरों ने इस देश में ज्वाला को प्रज्वलित रखा, जिसके कारण से आज हम सिर उठाकर जीवित हैं। हमने पाकिस्तान को भी तेजी सिंह शायद उस समय रहे हुए कर्नल, जब बांग्लादेश बनाकर उसको हमने जवाब दिया था कि धर्म पे आधारित इस देश का जो पार्टीशन हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस देश के अंदर आज भी जनरल बाजवा हैं, बाजवा लिखते हैं तो कोई न कोई मेरे उस हिंदू उपजाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, ये वो सब लोग जो डर के मारे, भय के मारे या लालच के कारण इस्लाम स्वीकार किया था, मुझे लगता है कि आने वाले 30-40 साल में जिस प्रकार से हमने पिछले 6 साल में आगे बढ़े हैं, ये लोग भी इस्लाम को मानते हुए भी अपने आप को गर्व से हिंदुस्तानी और हिंदू कह सकेंगे, जिस प्रकार से इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि इस्लाम को मानने वाले देश करते हैं। आज भारत के अंदर जिस प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से छोटी छोटी बात पर लगातार झगड़े करके इस देश को जलाने की साजिशें रची जा रही हैं, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हम केवल नाम मात्र के हिंदुस्तानी रह गए। इसी कारण से दिल्ली में दंगे हों, बेंगलौर में दंगे हों, उनका बस चले तो सारे देश में दंगे ही दंगे हो सकते हैं। परंतु आज एक स्ट्रॉन्ग विल के नेतृत्व है और नेतृत्व को पूरा साथ है इस देश की सुरक्षा के अंदर लगे हुए मेरी भारत की सेनाओं का, भारत के जितने भी हमारे बाकी बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि लोग हैं, ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की सुरक्षा को पिछले 73 साल से सुरक्षित रख पाए हैं। और अब तो इनको पूरी छूट मिली है कि जो आपको ठीक लगे वो काम करिए। जैसे हथियार आपको चाहिए वो हथियार देश मुहैया कराएगा, और इस देश का नेतृत्व सैनिकों को पूरा विश्वास, मान सम्मान देकर आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस देश को तोड़ने की शक्तियां हैं, इनको भी देर समझ में आ जाएगा, क्योंकि शक्ति सर्वत्र पूज्यन्ते। इजराइल और यूएई में यदि कल समझौता हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान को भी दृष्टि जरूर मिलेगी कि भारत से झगड़ कर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। भारत का मूल रूप से वो हमारे हिस्से हैं। पाकिस्तान के चैनल्स में भी आज वो अपनी पूर्वजों को वो भी याद करने लग गए हैं, सर गंगा राम को भी महान बताने लग गए हैं, और राजा दाहिर से लेके उसके पहले की सब परंपराओं को
अपना कहना प्रारंभ हुआ है। इसलिए निराशा का कोई कारण नहीं है, केवल अपने अंदर हम सक्षमता लाएंगे, हम उस काबिल बनेंगे कि इस देश को सही नेतृत्व को आगे बढ़ाने में मदद करें। इस देश के अंदर अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ है। इस देश के अंदर केवल एक, मैं समझता हूँ कि राजनीति में उन लोगों की कमजोरी है, कमी है, जो इस देश को जिनको नेतृत्व देना था या दे रहे हैं। परंतु आज के इस कोरोना में आज 29 के 29 मुख्यमंत्री जिस प्रकार एकजुट होकर एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन इस कोरोना की बीमारी पर विजय प्राप्त करने में देश के साथ रहेंगे, मैं समझता हूँ सबका योगदान इसमें प्रणनीय है। आज इस देश को अच्छी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता थी, जिसके बारे में हमारे एस.के. गर्ग साहब ने थोड़ा बताया। आज मैं समझता हूँ कि अब ये अनलॉकिंग होगा। इस देश में जो पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं, जो बांध दी गई थी केवल क्लर्क पैदा करने के लिए या कुछ ऐसे अवसर बनाने के लिए, तो बहुतों पर राज करने की जिनकी प्रवृत्ति हो, इससे अब हमें मुक्ति आने वाले 2-3 साल में मिलेगी। और इस देश की जो क्षमताएं हैं वो अब उजागर हो रही है। इस कभी सोचा था जिनका हमारे ऊपर राज रहा हो, आज का उनका गृह मंत्री, उनका फाइनेंस मिनिस्टर भारतीय है, तीसरा मिनिस्टर भी शर्मा है। आज ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 भारतीय मूल के लोग सीधे मंत्रियों और अच्छी मंत्रालय उनके पास हो। कनाडा में 4 मंत्री हों, और अब तो कनाडा में के लिए कमला का जिस तरह से नाम आया, तो भारत की क्षमताएं जग जाही हैं। उन देशों में तो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहले ही बन चुके हैं, जो मॉरिशस, गुयाना, त्रिनाड इत्यादि देशों में, मलेशिया में, सिंगापुर में हमारे मंत्री हैं। तो मैं समझता हूँ इस देश की क्षमताओं के ऊपर स्वयं को हमें विश्वास करना होगा, और स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले 15-20 साल में आज हम जो सो-कॉल्ड जीडीपी इत्यादि है, इन सब में हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे। ये विश्वास लेकर ही हम पिछले 20 साल से महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर, जो 5000 वर्ष पूर्व हुए थे, और उसके बाद लगातार हमारे समाज ने सबको साथ लेकर आगे बढ़े। इस देश के अंदर धर्म का कोई कार्य हो, शिक्षा का कोई कार्य हो, योगदान का कोई काम हो, सब में हम आगे रहे हैं। और महावीर चक्र विजेता यदि कारगिल का जिक्र आता है तो विवेक गुप्ता का भी हमेशा जिक्र आता है, जिस प्रकार हमारे बत्रा जी का आता है, बाकी सब लोग कभी भी देश के लिए अपने प्राण देने में हम पीछे नहीं रहे। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे यहाँ भी ब्रिगेडियर जो साहब है, हमारे डायरेक्टर प्लेसमेंट, 125 से ज्यादा इंजीनियर्स हम भारत की तीनों सेनाओं को दे चुके हैं। देश को IAS दे चुके हैं, IPS दे चुके हैं, और अनेकों माइक्रोसॉफ्ट से लेकर जितनी कंपनियां हैं उन सब में हमारे योग्य इंजीनियर जा रहे हैं। अमेरिका में 1000 से ज्यादा हैं, जो भारत का नाम हमेशा ऊंचा करने में उनको जिस प्रकार से हमने शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए हैं, मैं समझता हूँ, मुझे संतोष है कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज पूरे देश में नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स में पहले 10 में अपना स्थान पिछले 3-4 साल से बना के रखे हुए। हमारा मैनेजमेंट के अंदर आधे से ज्यादा मेरिट हमारी आती हुई, मैनेजमेंट के साथ BBA, अब तो लॉ भी, जर्नलिज्म, सब चीजों में आवश्यकता है। इस देश जर्नलिस्ट इस देश में यदि ढंग से जिनको जर्नलिज्म आ जाए, देश को आगे रख के चले, तो आधे से ज्यादा मैं समझता हूँ ये जो सो कॉल्ड चल रही है चैनल इत्यादि, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर परोसने के लिए कुछ नहीं, केवल सेंसेशन के अलावा कुछ नहीं करते। परंतु क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, उसका सब्स्टिट्यूट देना है। उसके लिए रोल मॉडल हमारे जाके बने। आज हमारे वो लोग सब जगह पहुंचने शुरू हो गए। जुडिशरी में भी हम आने वाले 5-7 साल में अच्छे जजेज, अच्छे वकील देंगे। हमें पूर्ण भरोसा है कि आज 10,000 लोगों को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। देश पर संकट कहीं हो, केरल में बाढ़ आए तो दर्द हमें उतना ही होता है जितना कि दिल्ली के अंदर होता है। उसमें भी हम सहयोगी बने, PM केयर्स में बने, और राम मंदिर बने, भव्य बने, क्योंकि राम कोई देवता नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है। और मेरे जीवन में तो शुरुआत ही विवेकानंद से हुई थी, जब उनका स्मारक बना था। इसलिए मैं तो बहुत ही इस चीज को मानता हूँ कि हमें अपने इन पूर्वजों को, जो हमारे रोल मॉडल हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए 23 जनवरी किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। और मेरे पिछली बार लगभग 1000 हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे साथियों ने
रक्तदान करके एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था और इसके अंदर पहली पसंद थी हमारी भारत की सेनाएं, उसके बाद लायंस और रेड क्रॉस और बाकी संस्थाएं थी। और भारत की सेनाओं को लगातार पिछले कई साल से हम यहाँ ब्लड दे रहे हैं और आगे भी उनको पूरी लिस्ट लेके रखी है, कभी भी आवश्यकता होगी तो इसी प्रकार की तैयार है, तैयार रहेगा, क्योंकि हम एक ही देश के लेकर ये तो सब पहले के नहीं है। महाराजा सबको बराबर सम्मान मिलता था, उनके आदर्शों पर चलते हुए हम सब लोगों को साथ लेकर हम एक ऐसे समाज की रचना कर चाहते हैं जिसमें ऊंच नीच ना हो, छोटा बड़ा ना हो, जातिवाद ना हो, सब के सब राष्ट्रीय बने और राष्ट्र सर्वोपरि हम सबके लिए रहे। उसी के लिए साल में हम 10-12 कार्यक्रम करते रहे हैं। पिछले 5 महीने से आज हम पहली बार फिजिकल रूप से 25-30 लोग यहाँ मिले हैं और हजारों लोग हमारे इस वेब से जुड़े हैं। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस पर हम फिर से संकल्पित हैं कि इस देश के जो भाग जिस रावी के किनारे पर शपथ ली थी पूर्ण स्वतंत्रता की, वो रावी का किनारा यदि फौजियों को 65 में थोड़ी छूट दे दी होती तो रावी का किनारा तो 3 दिन की बात थी, लाहौर हमारा होता। और लाहौर तो साथियों ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा, शायद अक्टूबर तक अनडिसाइडेड था। 15 अगस्त के दिन तक भारत की सीमाएं तय नहीं हुई थी, परंतु भारत के अंदर ये इतिहास पढ़ाया नहीं गया। भारत की सीमाओं को तय करने में बरसों लगे और जो जिसको बहका कर ले गए थे दलित मुस्लिम एकता के नाम पर मंत्रिमंडल, जो पहले नवाब मिनिस्टर पाकिस्तान के बने थे, वो 3 साल बाद आकर कलकत्ते के अंदर गुमनामी का जीवन जिए, पश्चाताप करते रहे कि मैं एक मृग मारीचिका में फंस गया था और मैं जाकर वहाँ कानून मंत्री जरूर बना, परंतु जब अत्याचार देखे तो भारत आकर ही फिर उसको शरण मिली। आज बांग्लादेश को सबक मिली है, सांस्कृतिक रूप से भारत के ज्यादा नजदीक है बांग्लादेश, कोई टेंशन नहीं है, सब चीजों के एक्सचेंज चल रहे हैं। इसलिए पूजा पद्धति किसी की कोई हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारतवासियों को, क्योंकि हम बड़े दिल के लोग हैं। सबसे ज्यादा पारसियों को शरण दी तो भारत ने दी, सबसे ज्यादा जब सब जगह यहूदी जलाए जा रहे थे तो भारत ने शरण दी। भारत के अंदर सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, परंतु उसके साथ एक ही शर्त है कि इस भारत भूमि को, इस मातृभूमि को अपना समझे और इसकी जय बोलने में जिसके कंठ से स्वर ना निकलते हैं उनको मैं समझता हूँ रहने का कोई अधिकार ना होना चाहिए। और भारतवासी इतने सक्षम हो जाए कि वो अपने आप ही समझ जाए यहाँ रहना है तो सबको मिलजुल कर रहना है। इससे बढ़िया देश पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता। यहाँ प्रकृति की सब भरपूर चीजें हैं, मौसम अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सदियों से रहते हैं। सृष्टि की रचना, सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा इसको मानते हैं विदेशी बड़े बड़े नाम, वो भारत रहा है, भारत रहेगा। आज हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला है, उनके ऊपर पूरा विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले 6-7 साल तक भारत में अपनी स्वतंत्रता की जयंतियां मनाएगा 75वीं। इसके बाद भी जो कार्यक्रम हुए और इस शताब्दी के मिडल आते आते हम अपना वो स्थान निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे जिसके अंदर हम किसी को डराएं नहीं और हम किसी से डरे नहीं। ये यदि भावना लेके चलेंगे आने वाला कल हमारा है और उसको और अधिक सुनहरी और अधिक मजबूत बनाना है। आज के दिन हम सब शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिनके कारण से हम आजाद हुए थे, आजाद रहे हैं। भारत के सैनिकों को जिनके जज्बात के कारण, जिनकी मेहनत के कारण आज चीन से बराबरी का टक्कर ले रहे हैं। पाकिस्तान को हमारे सामने रोने और गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में है, तो हम सब आज फिर से अपने उन सबको याद करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर जितने भी हमारे लोगों ने 1000 साल तक संघर्ष किए, जिनके कारण हम आजाद होने में सफल हुए, आजाद रहे। इसके लिए हमारे सैनिकों को सलाम, हमारे पूर्वजों को सलाम। और आज के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
Hello, a very happy good afternoon to all of you. I hope, like me, Yes, sir. everybody is very energized after listening a lot of dignitaries on this pre-evening of 74th Independence Day. This is my humble duty, and I'm also very happy to give a word of thanks after having this long session of our hosting of national flag on this pre-evening of 74th Independence Day and listening a lot of dignitaries. Only two thoughts I would like to share. Yes, we are celebrating our 74th Independence Day today in the campus of MAIMS in our college, Maharaja Agrawal Institute of Women Studies. And we find that in 1947, India got freedom. But it's not only the freedom we got from the English, but it had been unfortunate that India had been under the rule of a lot of foreign countries and civilizations, most probably of around 800 years, or let us say exactly 750 years. If we recall back in the history, yes, it was the era of 1200, 1194th year, when the last Hindu, you can say, ruler, Prithviraj Chauhan, was taken over and he was killed. After that, we don't find any example that any Hindu ruler was having, and the India as a nation was united. So we may conclude that yes, ultimately we got the independence on 15th August 1947 from the English, but probably it is around of more than 750 years we had to be under the control of the foreign civilizations and foreign countries. At the very same time, even after a lapse of 73 years, we find that one thing is still missing. We as India, as a country, as a nation, we are one. But the sentiments towards nationalization, towards nationalism still is not developed fully among our Indians. So I would convey my feelings, including myself also. Let us on this day, after 73 years of independence, on this day, we all stand committed that we would inculcate and we would develop more and more the sentiments of towards our nation as India, the nationalism, this thought, this sentiments we should commit and we would develop among us ourselves. Second thing which comes to my mind, we got freedom on 1947 after 73 years. Let us again, we should also commit. As a India, we have got independence, we are freedom. As an individual also, we may on this very humble day, on very pious day, we may commit by ourselves, we would also get freedom from as an individual, from the greed, from the jealousy, casteism, shirkic work, and the negative thoughts. So on this day, on this pious day, we may commit ourselves, all these 5 evils, we may commit, and we commit on this day, we will get freedom from these 5 negative evils from our life, from our personality. So I hope if we make these commitments, our this Independence Day celebration would be very much thoughtful and which will be very much useful. Now, the performing my duty of this giving vote of thanks, I find that the chief guest, General J.J. Singh, we have listened, the guest of honor, Colonel K.K. Singh, our guiding force, chairman, founder, and the advisor, Maharaja Agrawal Technical Society, Dr. Nandkishore Garg, our chairman, Shri Vineet Gupta, mates, our executive chairman, Shri S.P. Agrawal, our other dignitaries, trustees, and office bearers of Maharaja Agrawal Technical Society, Director General Professor S.K. Garg, advisor, Professor G.P. Goel, and all other dignitaries, directors, deans of other sister institutions, the dean of the College of MAIMS, the head of the departments, all my dear faculties, specifically the faculty coordinators, Sakshi Gupta, Diksha Goel, Sanjay Mangala, Dr. Umesh Pathak, who is continuously making a recording of this program by himself individually,
so that it is live on the Zoom and also YouTube live. And all wonderful team of faculty and the staff, I convey my heartiest thanks to be a part of this celebration of Independence Day. And to all, thanks, and also my best wishes on this Independence Day. Thank you to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Wonderful. Independence Day over. Thank you, sir. Thank you, sir. And now I request all of you to please stand for the national anthem. Continuation. आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata. That's enough for that. Thank you, everyone, for joining this event for the celebration of 74th Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day.